اپوزیشن کل کے بجائے آج عدم اعتماد لائے. سینیٹر فیصل جاوید کا اپوزیشن کو چیلنج. کہا اپوزیشن جب بھی میدان میں آئی ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. یہ ہر محاذ پر ناکام ہو چکے ہیں. کرپٹ مافیا NRO کے حصول کے لیے اکٹھا ہوا. ان کا اصل مسئلہ مقصود چپڑاسی ہے. یہ کہاں سے لے کے آئیں گے تحریک عدم اعتماد؟ جب یہ میدان میں آتے ہیں تب ان کو ناکامی ہوتی ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ کل نہیں آج ہی لے کر آئیں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد. اور وہ تحریک عدم اعتماد نہیں ہوگی بلکہ عمران خان کے اوپر اعتماد پلس ہو جائے گا. بہت سے لوگ جو کہ اپوزیشن کے ہیں وہ بھی عمران خان وزیر اعظم کے اوپر اپنا اعتماد کا اظہار کریں گے. ہمارے اتحادی بھی ہمارے ساتھ ہیں. ہر میدان میں ہمارے اتحادیوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. مسئلہ اپوزیشن کا صرف مقصود چپڑاسی کا ہے. یہ مقصود چپڑاسی کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ پھر اکٹھے ہوئے ہیں. یہ مانگ رہے ہیں NRO اور اسی کے لیے یہ سب اکٹھے ہوئے ہیں. وزیر اعظم 5 سال پورے کریں گے اور مخالفین جیل جائیں گے. وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب کا اپوزیشن کو جواب. کہا لندن میں بیٹھے مفروروں کو واپس آنا ہوگا. آریہ پار کرنے والے جگہ جگہ خوار ہو رہے ہیں. آڈیو ویڈیوز اور بریف کیسز کا سہارا لے رہے ہیں. غیر اخلاقی تمام مہمات مریم صفدر کی ہدایت پر چلائی جاتی ہیں. کل کا جلسہ عظیم الشان ہوگا. پچھلے 3-3.5 سال سے ایک بلیک میلنگ کا جو ہے وہ سلسلہ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے جو ہے وہ جاری ہے. بنیادی طور کے اوپر تو یہ ایک بلیک میلرز کا ایک ٹولہ ہے. آج آر یا پار والے جگہ جگہ جو ہے وہ خوار ہوتے پھر رہے ہیں. ایک دوسرے کو گھسیٹنے والے جو ہے وہ آج ایک دوسرے کی لوٹی ہوئی دولت کا تحفظ کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں. یہ شریف ڈاکٹرائن ہے ان کا کہ یہ کبھی ویڈیوز کا سہارا لیں گے, کبھی آڈیوز کا سہارا لیں گے, کبھی بریف کیس کا سہارا لیں گے, کبھی یہ لوگوں کو ٹیلی فون کالیں کر کے فیصلے لکھوائیں گے. جو لندن میں مفرور ہو کے بیٹھے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ملک کے اندر واپس آنا ہے. ان ساری جو ٹویٹر کے اوپر غلیظ اخلاقیات سے گری جتنی بھی کیمپینز ہیں وہ مریم صفدر کی ہدایت کے اوپر جو ہے وہ چلائی جاتی ہیں. ایسے جو اوچھے ہتھ کنڈے ہیں ان ہتھ کنڈوں سے جو ہے وہ باز رہیں. سیاست ہے, سیاسی میدان کے اندر آ کے مقابلہ کریں. سینیٹ میں اکثریت رکھنے والے اپوزیشن کو ایک اور شکست. حکومت ایوان بالا سے 3 بلز منظور کروانے میں کامیاب ہو گئی. الائیڈ ہیلتھ پروفیشن کاؤنسل بل کی تحریک پر 29 ووٹ پڑے جس پر چیئرمین سینیٹ نے حکومتی پلڑے میں اپنا ووٹ ڈال کر بل منظور کرایا. مؤخر بل پیش کرنے پر اپوزیشن نے احتجاجاً ایوان سے واک آؤٹ کیا. اپوزیشن کے واک آؤٹ کے باعث پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر بحث نہ ہو سکی. چیئرمین سینیٹ نے اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا. چیئرمین نیب کی تعیناتی کے اختیار سمیت نیب ترمیم قانون کے 2 بل قومی اسمبلی کی کمیٹی قانون اور انصاف نے منظور کر لیے. بل کے حق میں 9 ووٹ پڑے. اپوزیشن نے چیئرمین کمیٹی پر تنقید کرتے ہوئے اجلاس سے واک آؤٹ کیا. ریاض فتیانہ کی زیر صدارت قائمہ کمیٹی قانون انصاف کا اجلاس ہوا. نیب قانون میں ترمیم سے متعلق حکومت کے دونوں بل کثرت رائے سے منظور کر لیے گئے. بل کے حق میں 9 اور اپوزیشن کے 7 ووٹ تھے. بل منظوری پر اپوزیشن نے چیئرمین کمیٹی کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کردار کو بدنیتی پر مبنی قرار دیا. اپوزیشن نے احتجاجاً اجلاس کا واک آؤٹ بھی کیا. بولے چیئرمین نے اپوزیشن کی اقلیت کو دیکھ کر بل پاس کرایا. اجلاس میں پیپلز پارٹی کے قادر مندوخیل اور PTI کے رکن عطا اللہ کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا. سعد رفیق نے کہا رانا ثناء اللہ کو دھند کی وجہ سے تاخیر ہوئی, راستے میں تھے. چیئرمین کمیٹی کو بل پر ووٹنگ نہیں کرانی چاہیے تھی. ثناء اللہ راشد صاحب راستے میں, لیکن اور یہ سیکرٹری صاحب نے یہ ڈیفینیٹلی میری تجویز جو ہے یہ ریکویسٹ یہ چیئرمین صاحب کو پہنچائی. انہوں نے کہا یہ پہنچ جائیں گے اس سے پہلے میں بلڈوز کروں.
तो ये बुलडोज किया इन्होंने, बड़ी ज्यादती की है। जिसकी फ्रेश अपॉइंटमेंट की कैटेगरी के हिसाब से और उसकी मेरिट के हिसाब से ऑलरेडी इसी कमेटी ने पिछली मीटिंग में कंप्लीटली हुकूमत और अपोजिशन ने रिकमेंड किए कि कोई जो है ना अपॉइंटमेंट होगा और मेरिट भी होगा, थ्रू एडवर्टाइजमेंट होगा। वज़ीर कानून फरोग नसीम ने कहा कि चेयरमैन कमेटी रियासतियाना गैर जानबदार होकर अजलास चलाते हैं। अजलास के दौरान हुकूमत अक्सरियत में थी, अपोजिशन के एक मेंबर के आने से फर्क न पड़ता। चेयरमैन साहब रियासतियाना की बड़ी तारीफ है, बड़े न्यूट्रलिटी से चलते हैं। एक मेंबर आए PMLN के, तो हमारी मेजोरिटी तो 9-7 की थी, तो वो आ जाते तो 9-8 हो जाता। फरोग नसीम ने कहा कानून साजी इमरान खान या मेरी जात के लिए नहीं, पाकिस्तान की अवाम के लिए है। सिलेक्टेड हुकूमत कानून की हुक्मरानी खत्म करना चाहती है। इमरान दौर में मुल्क जमहूरियत से दूर हो रहा है। अदलिया को कौमी मामलात पर नोटिस लेना चाहिए। मुल्क को आजाद अदलिया की जरूरत है। बिलावल भुट्टो का लाहौर हाईकोर्ट बार से खिताब, कहा वो खुद निजाम इंसाफ के शाहिद भी हैं और मुतासिर भी। शहीद भुट्टो और शहीद बीबी आज भी इंसाफ के मुंतजिर हैं। मुल्क को साफ और शफाफ निजाम एहतसाब की जरूरत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर हाई कोर्ट बार से अहम खिताब। उन्होंने कहा मौजूदा दौर में मुल्क जमहूरियत से दौर और आमरीत की तरफ बढ़ रहा है। Present selected government seeks to strip apart the rule of law. It is time to remove this stain from the judiciary of Pakistan. We in fact have a free and independent judiciary. A free and independent judiciary must free itself of the injustices of the past, of the historic wrongs, of the illegal decisions that endorse dictatorships. उन्होंने कहा वो निजाम इंसाफ के शाहिद भी हैं और मुतासिर भी। शहीद भुट्टो और बीबी शहीद आज भी इंसाफ के मुंतजिर हैं। As a child, I accompanied my mother to courts and to meet my father in prison, who spent 11.5 years in prison without a single conviction. Shaheed Mohtharma Benazir Bhutto and Sadr Zardari faced persecution of the Ehtisab Bureau, but we are eternally grateful. हर एक केस में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को, सदर जरदारी को बाइज्जत बरी कर दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इनकी जिद्दोजहद ऐसे निजाम के खिलाफ है जो नाकाम हो चुकी है। मुल्क को साफ और शफाफ निजाम एहतसाब की जरूरत है, जो मुतसबाना ना हो और जो शफाफियत पर मबनी हो और जिसमें किसी को हदफ बनाकर इंतकाम का निशाना ना बनाया जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सहाफी मोहसिन बेग के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा खत्म करने से मुताल्लिक समाअत हुई। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने चैम्बर में केस की समाअत की। अदालत ने SHO मारगला से कल तक रिपोर्ट तलब कर ली। मुकदमा खत्म करने की इस्तदा मोहसिन बेग की अहलिया ने की थी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पुलिस ने झूठा और बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया। अदालत पुलिस को मुकदमा खारिज करने का हुक्म दे। वफाकी वजीर शफकत महमूद का कहना है कि एक शख्स के खिलाफ केस था, FIA गिरफ्तार करने गई। मज़कूरा शख्स को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था। पुलिस पर फायरिंग करना ठीक नहीं था। एक साहब जो थे जिनके खिलाफ FIR थी और FIA गई, मैंने तस्वीर देखी है जिसमें जो अक्यूज हैं उन्होंने हाथ में पिस्तौल पकड़ा हुआ है और पुलिस वाले को मार पीट रहे हैं। किसी भी शहरी को, किसी भी शख्स को ये हक तो नहीं है कि वो कानून को अपने हाथ में ले और जो पुलिस पार्टी है उस पर हमला आवर हो जाए। ये तो बहुत ही एक खतरनाक मिसाल बन जाएगी। अदालतें जो है वो फैसला करती हैं। चाहे जो भी किसी ने किया था, उन पास ये अख्तियार नहीं था कि वो पिस्तौल से फायरिंग करें और उनके ऊपर तशद्दुद करने की। हर पाकिस्तानी, चाहे वो हुकूमत में हो, चाहे अपोजिशन में हो, चाहे आम शहरी हो, उन सब के हकूक बराबर के। अगर कोई समझता है कि उसकी इज्जत पे हमला किया गया है और नाजायज किया गया है तो उसका हक है कि वो उसके बारे में शिकायत भी करे, जो भी करे। PDV और पार्लियामेंट हमला केस, परवेज खटक, जहांगीर तरीन और शफकत महमूद समेत 11 मुल्जिमान की दरखास्त बरियत पर फैसला इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने महफूज कर लिया।
ने PTV पार्लियामेंट हमला केस की समाअत की। वफाकी वज़रा असद उमर और शफकत महमूद समेत दीगर PTI रहनुमा पेश हुए। जज ने केस की इब्तिदा पर 11 मुल्ज़मान की हाजिरी लगाने की हिदायत की। वफाकी वज़ीर असद उमर हाजिरी लगाने के बाद अदालत से रवाना हुए। PTI रहनुमाओं के वकील सैयद मोहम्मद अली ने अदालत में FIR पढ़ी। वकील ने मुल्ज़मान की मुकदमा से बरीत की दरखास्त दायर की। मौक़िफ़ अपनाया, मरकजी मुल्ज़म इमरान खान को बरी करने का हुक्मनामे को 1.5 साल गुजर गया। दीगर मुल्ज़मान जमानत पर हैं, इन्हें भी बरी किया जाए। वकील ने कहा पुलिस ने नवाज शरीफ को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया था। मुकदमे की कापी और डिस्चार्ज का हुक्मनामा दरखास्त के साथ लाफ है। प्रोसिक्यूटर फखरा सुल्तान बोली कि प्रोसिक्यूशन को मुल्ज़मान को बरी करने में कोई एतराज नहीं है। वज़रा की रवानगी के बाद जहांगीर तरीन भी अदालत पहुंचे। वकील ने केस से बरियत के लिए अलग से दरखास्त दायर करने का मौक़िफ़ अपनाया। जहांगीर तरीन ने मुस्तकिल हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त भी दायर कर दी। जज ने कहा कि अगली समाअत पर हम फैसला कर देंगे। अदालत ने बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज करते हुए 9 मार्च को सुनाने का कह दिया। अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं तहरीक इंसाफ सिंध में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। अहम ओहदेदार मुस्ताफी हो गए। अली जैदी को सूबाई सदर बनाने पर कई रहनुमा नाराज थे। अब नामजदगियों पर भी इख्तलाफात सामने आए हैं। गवर्नर सिंध के मुशीर अली जुनेजो ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख भी सूबाई नायब सदर की नामजदगी से मुस्ताफी हो गए हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी से। अनुषा, बताइएगा PTI सिंध के अंदर चल क्या रहा है? जी बिल्कुल, देखिए सादिया गौस, PTI सिंध में इख्तलाफात जो है वो खुलकर सामने आ गए। अहम ओहदेदार मुस्ताफी हो चुके हैं। अली जैदी को सूबाई सदर बनाने पर कई रहनुमा नाराज थे। अब नामजदगियों पर भी जो है वो इख्तलाफात हमें देखने में आ रहे हैं। गवर्नर सिंध के मुशीर अली जुनेजो ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया, जबकि आज ही अली जैदी की तरफ से अली जुनेजो को सूबाई नायब सदर नामजद किया गया था। और उन्होंने जो इस्तीफा दिया उसमें लिखा गया है कि मेरे ऊपर पहले ही काम का दबाव है, कारकुन बनकर काम करता रहूंगा। जबकि अली जुनेजो पीपल्स पार्टी MP अजीज जुनेजो के दामाद हैं। दूसरी तरफ जो अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने भी इस्तीफा जो है वो दे दिया है। सूबाई नाइब सदर नामजदगी से इस्तीफा दिया है और उन्होंने भी जो है इस्तीफा दिया है, यही कहा है कि मसरूफियात की वजह से जो है वो नहीं संभाल पाऊंगा। जबकि PTI सिंध में सूबाई काबीना और डिवीजन के ओहदेदारान का ऐलान जो आज किया गया था, जिसमें जो है वो मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने सूबाई काबीना और PTI सिंध के सदर अली जैदी के डिविजनल ओहदेदारान को उनका नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी किया था। PTI रहनुमा अल्लाह बख्श अनड़, MNA शकूर शाह, ताहिर शाह और अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख PTI सिंध के सीनियर नायब सदर जो है वो मुकर्रर किए गए, जिसमें हलीम आदिल शेख ने वो इस्तीफा दे दिया है। अनुषा जाफरी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी। 29 अजला की यूनियन काउंसिल्स, यूनियन कमेटीज और वार्ड की हल्काबंदियां सामने आ गई हैं। हल्काबंदियों की तफसीलात जिले इलेक्शन दफातर में आवेजा कर दी गई हैं। हल्काबंदियों पर एतराजात जमा कराने की आखिरी तारीख 3 मार्च है। इलेक्शन कमीशन ने सिंध में 29 अजला की हल्काबंदियां जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कराची के 7 अजला 25 टाउन्स पर मुश्तमिल होंगे। 233 यूनियन काउंसिल और टाउन्स में 932 वार्ड हैं। जिला वस्ती में 5, शर्की में 5 टाउन, जिला कोरंगी में 4 टाउन, किमाड़ी में 3, मलीर में 3, जिला गरबी में 3 टाउन और जिला जुनूबी में 2 टाउन बनाए गए हैं। जिला इलेक्शन कमीशन के दफातर में अजला की तफसीलात आवेजा कर दी गई हैं। हल्काबंदियों पर एतराजात 17 फरवरी से 3 मार्च तक दायर किए जा सकते हैं। 22 मार्च को हल्का बंदियों की हतमी शक्ल दे दी जाएगी। कोयटा में मेडिकल के तलबा का मुतालबात के हक में एहतजाज। तलबा ने रेड जोन की जानिब मार्च किया तो पुलिस ने आगे जाने से रोक दिया। पुलिस और तलबा में तल्ख कलामी और हाथापाई हुई। तलबा ने पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और कमिश्नर ऑफिस के बाहर धरना दे दिया।